Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is this is the first topic of this writing work, that is note making. In this note making today, we will discuss what is the what is the basic definition of this note making, what note making actually is, and what is the basic format required for making these notes, and we will discuss it through an example. First, what exactly note making is? Note making is actually, note means an important information out of a given text. Uh, Note making is a skill or it is a technique. Rather, technique. It is a skill of recording information from any other source, like an article, lecture, meeting, or sometimes a discussion. We have been provided with various types of sources, for example, an article from newspaper, any passage, any extract of a book, or a discussion, and we are asked to make notes out of this information. And why we make these notes, we will discuss. First, जैसे कि एक मिसाल मैंने आपको दी थी पहले भी आपको, कि दिस नोट मेकिंग, दिस नोट और दिस टॉपिक, दिस द सोर्स, इट इज जस्ट लाइक ए गार्डन, एंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, दैट इज सेंटेंसेस, दीज आर फ्लावर्स. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मेरे लिए दो तीन फ्लावर ले आओ, आप पूरा बगीचे से फूल तोड़ के लाएंगे, दैट विल नॉट सफाइज द वर्क. काम ये होगा कि आप वही फूल लाएंगे जो मैंने आपको कहा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज द, आप तीन फूल लाओगे मेरे लिए, फॉर रोज, चमेली, दहलिया वगैरह, तो आपका काम हो जाएगा. सो वी कैन कंपेयर दिस सोर्स और टेक्स्ट with garden, and the sentences with the flowers, and what you will have brought, that is the notes. वही आपको इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे पास, तो हमें इसमें से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है. इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्यों? देर आर डिफरेंट वेज हाउ टू मेक दीज नोट्स. देर आर टू वेज. वन वे इज linear way of making. Linear means in a sequential order, first, second, third, fourth, fifth, accordingly. And another way is branching or non-linear way of note making. In non-linear, for example, we make tree diagrams, mind mapping. These include this branched type of note making, but here we will discuss only the linear type of note making. In this note making, our notes should contain or should have 3s. 3s means it note should be short, they should be short, simple, and sequential. The notes which we will make out of a text, they should be short, simple, and sequential. So इस तरह से हम लोग, हमारा जो नोट होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, सीक्वेंशियल होना चाहिए, और सिंपल होना चाहिए. But why note making? Why we make notes? Note making skill, it helps us in many ways in the job market. For example, we are provided with a bulky information, and through this technique, through this skill, we can transform this bulky information to a manageable size. Second use, it helps us to increase the recall value. It helps us to increase our recall value, as it reconstructs what is said and written. Third importance is, it serves as a last minute reminder for students at the time of examination. This is the importance why note making, why we make notes. In this note making, now the question is, this is what note making actually is. Now, what is the basic format required for this note making? In this, for this note making, we have a simple format. For example, हमारे लिए we should have, our note should have three elements. That is notes, details of abbreviations, and summary. First of all, हमारा जो format इसके लिए होगा, we will make a heading of the given source, then subheading, and keywords.
These keywords include abbreviations. Our keywords include abbreviations. And finally, heading, subheading, keywords, abbreviations. Then we can make also the summary of this note. हम at the end of this is the format. अगर हमारे पास एक टेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स एंड समरी. तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, if the text is very much lengthy, we will go by paragraphs. फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, सो हम उसका हेडिंग देखेंगे, व्हाट अबाउट द पैराग्राफ इज. उसके बाद एक सब हेडिंग, उसके बाद कीवर्ड्स मीन्स इंपॉर्टेंट वर्ड जिसमें होंगे, उसमें हम क्या करेंगे? वी विल मेक यूज ऑफ फ्रेजेस, स्मॉलर सेंटेंसेस. अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी होंगी तो शॉर्ट सेंटेंस होंगे, फ्रेजेस होंगे. हम सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी कैन मेक यूज ऑफ सिंबल्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, हम डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द रेट ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलोन यूज कर सकते हैं, और इसके साथ ग्रेटर देन, लेस देन, इंक्रीज, डिक्रीज वगैरह. दीज सिंबल्स इन ऑर्डर टू मेक द टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और शॉर्टनर फॉर्म. तो सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और एब्रीवेशन, जब हमें एब्रीवेशन किसी वर्ड की बनानी है, देयर आर टू वेज. वी कैन यूज द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड एज एब्रीवेशन, और समटाइम्स ओमिट वॉवेल्स. जैसे हमारे पास वर्ड है प्रॉब्लम, इसमें वॉवेल को रिमूव करेंगे हम, तो हम लिखें PRBLM. दिस इज द वे ऑफ मेकिंग एब्रीवेशन. ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे पहले वो लेटर्स लिखेंगे वर्ड के, इंफॉर्मेशन है, हम लिखेंगे इन्फो. तो इस तरह भी हम नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ साथ उसके एक और है, और इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना है. सपोज हमने यहाँ पर हेडिंग लिखी है, इसे आगे यहाँ थोड़ा चला जाएंगे हम, सब हेडिंग, फिर कीवर्ड्स, फिर एब्रीवेशन, सिंबल्स, और साथ साथ इसको हम नंबरिंग करते हैं. नंबरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम रोमन में भी कर सकते हैं, 1 या ऐसे 2 3. हम लेटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हेडिंग को 1 लिखेंगे, सब हेडिंग को A, और कीवर्ड्स के लिए ये रोमन लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एक इंडेंटेशन भी हो जाएगी. तो इस तरह दिस इज द बेसिक फॉर्मेट, हाउ कैन वी मेक नोट्स. अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मैंने एक पैसेज रखी है. यू कैन मेक, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा इसका फोटोग्राफ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो पैसेज यहाँ पर दी गई है, मैं पढ़ूंगा. About 2500 million years ago, the earth on which we live was a ball of gas, which on cooling grew smaller and became liquid. The liquid continued to cool, giving off some of its heat by radiation, and when liquids grow colder, they solidify. The crust of the earth is the solid matter that resulted from this cooling, but probably inside the earth there is still a mass molten material which has not cooled as much as the outer crust. एक छोटा सा शॉर्ट पैसेज है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. अब इसमें हमें नोट्स बनानी है, तो हमें क्या क्या ख्याल रखना है, तो हम इसका नोट देखेंगे यहाँ पर. सबसे पहले इन दिस पैसेज ही टॉक्स अबाउट नोट्स इसके बनेंगे. आप देखना कि हम सारे क्राइटेरिया यूज करेंगे. फर्स्ट, इट्स हेडिंग इट इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. ठीक है. अब इसको A लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 2 का इस्तेमाल करेंगे हम, ऊपर लेटर्स का इस्तेमाल किया है. यहाँ पर लिखेंगे 2500 years, सॉरी मिलियन ईयर्स. फिर हम डैश, पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, अर्थ, फिर लिखेंगे डैश ए बॉल ऑफ गैस. शॉर्टकट हो गया, हमने डैश से ओमिट किया पूरी सेंटेंस को. सेकंड, ग्रेजुअली ग्रू गैस ग्रू कूलर. गैस ग्रू कूलर, डैश became liquid.
ठीक है. The third point, liquid cooled became Earth's crust. और साथ साथ ये भी हम कर सकते हैं, या एक और सब हेडिंग से भी सब हेडिंग नीचे बना देंगे. Some material remain molten. ठीक है. अब इसमें हमने ये लिखा है कि दिस इज द हेडिंग, सब हेडिंग. इसमें जो इंडेंटेशन ये भी पहले आ गई, ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, तीनों लाइनें, दूसरा यहाँ से शुरू होगा. इसमें कीवर्ड्स का हमें इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स लिखे यहाँ पर, ईयर्स, ठीक है, अर्थ, बिकेम. आप शॉर्टकट फॉर्म भी इस्तेमाल, यहाँ हमें कभी आ गई तो अगर बड़ी पैसेज होगी तो उसमें हमारे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे. तो इस तरह. नाउ इफ वी ज्वाइन दीज नोट्स, अगर हम इन नोट्स को कंबाइन करेंगे, वी विल मेक ए शॉर्ट समरी ऑफ दिस इन आवर ओन वर्ड्स. एंड एट द टाइम व्हाइल मेकिंग दीज नोट्स, जब आप नोट बनाओगे तो यू विल यूज योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स इस्तेमाल करना है, की वर्ड्स इस्तेमाल करना है. ये नहीं कि टेक्स्ट पर जो सेंटेंस है वही लिखेंगे, नहीं. ये लिखेंगे फॉर इट इज बिलीव्ड दैट 2500 million years ago earth was a ball of gas and this gas grew cooler and became liquids. This liquid further cooled and became the earth's crust. This became the shortest summary of this passage. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि नोट्स भी हमारे बन गए और समरी भी बन गई. टॉपिक का जो मेन मीनिंग है वो बराबर भी हो गया. ठीक है. तो once again I will recapitulate. This is the basic, the simplest technique how to make notes. नोट मेकिंग के लिए क्या करना है? नोट मेकिंग के लिए मैंने कहा है कि नोट जो होता है, we are provided with some information already, some source, and out of that source we have to make important information out. We have to take out some important points. और इस पॉइंट्स के निकालने के लिए there is a format. आप एक लाइन लोगे, ऊपर उस पर हेडिंग लिखेंगे, उससे आगे नीचे यहाँ जाएंगे राइट की और सब हेडिंग, तो उनको साथ साथ नंबर भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे. तो बीच बीच में जो वर्ड्स का हम की वर्ड्स भी लिखेंगे, हम एब्रीवेशंस लिखेंगे, हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे. एब्रीवेशन के लिए दो तरीके हैं, या लेटर वर्ड्स का पहले एक दो लेटर लिखेंगे या वॉवेल इसको ओमिट करेंगे. दिस इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग दिस. तो साथ साथ हम नीचे और सब हेडर्स भी बनाए जाएंगे. तो हमारे 3 एलिमेंट उसमें होना चाहिए, एक तो नोट्स और डिटेल्स ऑफ एब्रीवेशन. लास्ट पर जो ये नोट्स है इनको हम कंबाइन करके एक समरी भी बना सकते हैं. अगर क्वेश्चन आ गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट्स एंड डेवलप अ समरी ऑफ इट. इन दिस वे आवर द टॉपिक नोट मेकिंग इज completed. I hope that you might have understood again this topic. This is the easiest question you can do it in your examination. Thank you.